for uniformly charged circular ring, electric field at a point on the axis. Okay, if we suppose need to know the electric field due to a uniformly charged circular ring, let the charge is distributed on the circumference. Okay, let the charge is distributed on the circumference. Let it be having charge plus q, total charge, and suppose we want to discuss the electric field at a point P. This is the radius. Let this distance is x on the x distance away on the axis. Okay. The point P is x distance away from the center. So what I have said, that calculation of electric field means we need to work on a +1 charge at that point, है ना? So here we need to calculate the effect of the total charge on the ring at a point x distance from the center on the line called its axis. So being the total charge capital Q given on the circumference of the ring, it is a dimensional charge. तो हम क्या बताया था कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला है वो डायमेंशनल चार्ज के लिए वर्केबल नहीं है. सो टोटल फोर्स जो होगा दैट विल नॉट बी ड्यू टू द टोटल चार्ज के लिए एक स्टेप में नहीं लिख सकते. देन व्हाट आई हैव टू डू, आई नीड टू कंसीडर एलिमेंट चार्ज्ड बॉडी. ठीक है, क्या करेंगे, एलिमेंट चार्ज बॉडी लेना होगा. सो आई कैन कंसीडर अ स्मॉल सेगमेंट ऑफ द रिंग. सो लेट इट बी ऑफ लेंथ dl. dl लेंथ का एक सेगमेंट, दो सेगमेंट इनिशियली लेंगे, डायमेट्रिकली ऑपोजिट एलिमेंट, राइट. टू आइडेंटिकल सेगमेंट appearing diametrically opposite to each other, right. So for these two element we will charge on these elements will be dq each. ठीक है, let the charges on these two elements be dq each. dq charges होगा. अच्छा, how to know the dq charge? The dq is equal to charge on one element, charge on one element of length dl, dl length के एलिमेंट में. so that will be equal to lambda into dl, right, where lambda क्या है, where lambda is equal to charge per unit length, linear charge density. Lambda is equal to linear charge density, which in details we can write down, it is nothing but other than q by total length. Total length I can write down 2 pi r. Is that clear? So the charge on these elements, they will exert what? Repulsive force on the +1 charge. Yes or no? Yes. So what do you think? All the elements, all the identical elements throughout the circumference of the ring, will they exert, all the elements will they exert force all same in direction or not? What will be the nature of the forces? What will be the nature of the forces that we can see here on the +1 charge due to the element ring? dq charge will repel this +1 with a small force d. This dq charge will also repel this +1 with an equal value of d, but not same in direction. There will be an angle. Let this angle being geometrically taken theta. So both these two will be theta. So correspondingly these two angles will also be theta. So for one pair of diametrically opposite elements, the net force will appear at an angle of divergence. These two elements, the diametrically opposite element along with the axis, that will create one plane. Every diametrically opposite elements will create one plane along with the axis. Yes or no? समझ में आ रहा है कि नहीं सबको? यानी कि जो टोटल फोर्सेस, मान लो अगर पूरे रिंग में फॉर एग्जांपल 50 एलिमेंट्स है, तो 50 एलिमेंट्स का मतलब है 25 डिस्टिंक्ट प्लेन्स होंगे. वन सेट ऑफ डायमेट्रिकली ऑपोजिट पेयर ऑफ एलिमेंट्स विल क्रिएट वन प्लेन.
यानी कि 50 एलिमेंट्स अगर एज्यूम करते हैं तो 25 डिस्टिंक्ट प्लेन्स होगा और हर प्लेन में इस तरह का 2 डीई फोर्सेस होगा। तो ऑल टुगेदर 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री विल बी लाइक दिस कि ये अगर एक्सिस पॉइंट है तो टोटल फोर्सेस आर लाइक दिस। समझ रहे हो कि नहीं? टोटल फोर्सेस जो है वो इस तरह से एक सॉलिड ज्योमेट्री में अपियर करेगा। तो सब इतने सारे फोर्सेस है, सबको कैसे जोड़ेंगे? सो दैट्स व्हाई वी नीड टू वर्क इट आउट, वर्क द सिंप्लीफिकेशन विद दिस 2 डी फोर्सेज। ये जो 2 डी फोर्सेज है एक प्लेन में, उसका रिजोल्यूशन हमको समझना है। सो दिस 2 डी फोर्सेज दोज हु आर एट एन एंगल थीटा ईच विद दिस एक्सिस, इसको रिजॉल्व करेंगे, है कि नहीं? तो अलोंग द एक्सिस जो मेरे को मिलेगा वो मिलेगा 2 डी ई कॉस थीटा। द डी साइन थीटा कंपोनेंट्स जो है वो कैंसिल आउट होगा, इधर का कंपोनेंट्स जो साइन थीटा वाला कंपोनेंट्स है दे विल गेट कैंसल्ड आउट। यस, है कि नहीं? So this will happen with one set of diametrically opposite elements। सभी के साथ यही स्टोरी रिपीट होगा, हाँ या ना? ठीक है, तो इसका मतलब है नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, दैट मीन्स नेट इलेक्ट्रिक फील्ड at P that can be obtained by integrating 2 dE cos theta। Is that clear? Net electric field that can be obtained by इंटीग्रेटिंग 2 DE cos थीटा। क्लियर है? तो इसको इंटीग्रेट करेंगे, सो 2 इंटू डी एक्सप्रेशन विल बी k इंटू डी क्यू बाई दिस डिस्टेंस, ये वाला डिस्टेंस r है मान लो, स्लैंट लेंथ जो है, ठीक है? सो डी क्यू के साथ ये डिस्टेंस d, द डिस्टेंस इन द फॉर्मूला टू बी यूज्ड r, सो r स्क्वायर दैट इंटू cos थीटा। नाउ इफ आई सिंप्लीफाई इट, I can write down it is 2k dq can be written lambda into dl by r square का मतलब है कैपिटल R square plus x square that into cos theta। फिर से ज्योमेट्री देखो, so cos theta means in this triangle base to hypotenuse, right? So x to r, x to small r means under root of capital R square plus x square, हाँ या ना? ठीक है, सो सभी को इंटीग्रेट करेंगे तो कांस्टेंट टर्म को बाहर लो, 2k लैम्डा, इनफैक्ट x भी कांस्टेंट है, ठीक है, डिवाइडेड बाई ये जो टर्म है r स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर टू द पावर 3/2, दैट टू इज कांस्टेंट, इनटू इंटीग्रेशन ऑफ dl। पूरा dl को इंटीग्रेट करेंगे तो 0 to पाई r लेना है। वाई नॉट 2 पाई r? बिकॉज वी विल इंटीग्रेट अगेंस्ट ऑल द एलिमेंट्स इन वन हाफ ऑफ द सर्कल। दूसरा ऑपोजिट हाफ तो हर एक, क्योंकि हर एक स्टेप में 2 एलिमेंट का रिजल्ट लिए है ना, हाँ या ना? तो एक हाफ को इंटीग्रेट करेंगे, उसका करस्पॉन्डिंग हाफ ऑटोमेटिकली ऐड हो जाएगा। तो रिजल्ट हो गया 2k लैम्डा इंटू एक्स, दैट इंटू डीएल का इंटीग्रेटिंग रिजल्ट पाई आर डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर टू द पावर 3/2। क्लियर है? इसमें अगर मैं इसको लिखूं k इंटू एक्स लैम्डा इंटू 2 पाई आर दैट डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पावर 3/2, तो इसका मतलब देख लो, लैम्डा क्या था? सिंस लैम्डा वॉज q/2 पाई आर, ही था ना, हाँ या ना? सो फ्रॉम दिस स्टेप कैन आई राइट डाउन द लैम्डा इंटू 2 पाई आर इज एक्चुअली द टोटल चार्ज ऑन द रिंग, सो इट इज k इंटू q इंटू एक्स divided by r square plus x square to the power 3/2. So this is the result of the electric field. Are you getting it? At an axis point due to a uniformly charged circular ring. हाँ, एक बार मैं पूरा चीज को ये कर देता हूँ, देख लो। So what is it? It is saying that what will be the electric field at the axis point, at a specific point on axis? राइट, स्पेसिफिक पॉइंट मतलब अगर मेरे को उस पॉइंट का डिस्टेंस सेंटर से पता है, हाउ फार इट इज अवे फ्रॉम सेंटर, एंड रिंग इज हैविंग यूनिफॉर्म चार्ज ऑन इट सर्कमफरेंस, तो फिर नेट फील्ड क्या होगा? तो वी नो दैट इट इज द कैलकुलेटेड, इट इज गोइंग टू बी द कैलकुलेशन ड्यू टू अ डायमेंशनल चार्ज। और हमने क्या कहा था? k/r² का फॉर्मूला डायरेक्टली एप्लीकेबल है प्रोवाइडेड इफ q इज अ पॉइंट चार्ज। लेकिन ये एक डायमेंशनल चार्ज है, तो डायरेक्ट मैं ऐसा नहीं लिख सकता था कि k/a डिस्टेंस का स्क्वायर, ठीक है? क्योंकि वो डिस्टेंस स्क्वायर इसलिए नहीं होगा क्योंकि पूरे रिंग के लिए जो चार्ज है, फर्स्ट ऑफ ऑल स्लैंट डिस्टेंस सभी जगह से इक्वल होगा, लेकिन वो सभी फोर्स, सभी एलिमेंट का इफेक्ट तुमको दिख रहा है, वो यूनी डायरेक्शनल नहीं है। तो इसीलिए
जो लिमिटेशन है फॉर्मूला का कि फॉर्मूला कैन बी ओनली यूज्ड प्रोवाइडेड इफ द फिक्स चार्ज इज अ पॉइंट चार्ज, तो हमने क्या किया, पूरा रिंग में टोटल चार्ज को वन स्टेप में यूज नहीं किया, टोटल चार्ज का जो सबसे छोटा सेगमेंट हो सकता है दैट इज द चार्ज अपेयरिंग द स्मॉलेस्ट लेंथ सेगमेंट ऑफ द रिंग, तो हमने क्या किया, पूरा रिंग का सरकमफरेंस में सबसे छोटा पोर्शन लेंथ वाइज होगा, वो डीएल लेंथ का दो आइडेंटिकल सेगमेंट ले लिया। यूनिटरी मेथड, लैम्डा अगर यूनिट लेंथ का चार्ज है तो डीएल लेंथ में जो चार्ज होगा वो लैम्डा इंटू डीएल, सो दैट्स वाई डी क्यू चार्ज ऑन एलिमेंट रिंग इज लैम्डा डीएल। तो एलिमेंट पार्ट ऑफ द रिंग विल बी ट्रीटेड एज गुड एज अ पॉइंट चार्ज, तो फिर इसको अगर मैं एक पॉइंट चार्ज के जैसे डील करूं तो पॉइंट चार्ज के लिए फॉर्मूला एप्लीकेबल है, तो इसलिए पॉइंट चार्ज के लिए मैंने दो ऐसे डायमेट्रिकली ऑपोजिट पेयर ऑफ एलिमेंट्स के लिए फोर्स देखा, दोनों इक्वल होगा बट दे आर नॉट सेम इन डायरेक्शन, दे आर एट एन एंगल ऑफ डाइवर्जेंस ऑफ 2 थीटा। सो व्हाट विल बी देयर रिजल्टेंट? फर्स्ट, to know the resultant, it will be this mechanism. This mechanism is indicating the idea of resultant against two such elements, that is 2d cos theta. So against every two elements at the point P, we will get the net effect along the axis going away from center of the value of 2d cos theta. That means total effect at P will be along the axis. So that's why that expression has been integrated here, right, to get the electric field. So ये फिर वाला पार्ट उसका मैथमेटिकल पार्ट है about the integration. Is that clear?